Hi everyone, welcome back to my channel and to the second podcast of this channel, which is on the topic work life balance. No, study work life balance, yes. And you guys showed great support on my first podcast, the inspiring incident that made me 10x stronger. So that mama wala incident, and I thought why not to shoot another podcast, and here I am with another podcast, and this podcast will revolve around the topic balance, like why there need to be a balance in your life when you are managing a lot of stuff together. Okay, because if we don't find a perfect balance between the things we're doing now, everything will become a chaos or a mess which we really don't want. So having balance in life is something needed. Okay, and here I'll be shortlisting a few points and also some realistic facts that I go through on a daily life, and how I try to find balance in things. And I hope these points may help you, and if they help you, do let me know in the comment section. When you comment something, I feel really good that people are actually watching my videos by all their heart. So do tell me in the comment section, and without any further ado, let's get into the video. Okay, so let me be very realistic and informal with you guys. Since I was 14 years old, I am managing my home as well as my studies all together. Okay, and I'm very much familiar of the fact that there needs to be a balance between all the things, because if I completely indulge myself into household work, I'll not be able to do the CA preparation. And on the other side, if I totally indulge myself into CA preparation, I will not be able to manage my home, because being an elder daughter, it is my duty to somewhere, manage the house, the basic work. So there need to be a balance between them, and I actually will, share how a day in my life goes. For example, like other CA students, they say their things revolve only around study, but I say my things don't only revolve around studies. There are a lot of stuff other than studies. So yeah, so my every day starts off with a dilemma of what to prepare in breakfast, then फटाफट से completing all the household basic work, and getting ready and to reach the library on time, वहाँ जाके अच्छे से पढ़ाई करना, and I have to ensure that I am back home maximum by 5:30 or 6, ठीक है, so that it doesn't get much late. उसके बाद coming home comes with a lot of remaining stuff, फिर some time for self care, then the other time for study 1 or 2 hours, and then sleep. This is my picture of every day, like how my average day looks like. And for some people this might be like very hectic कि पूरे दिन काम ही कर रही थी या ट्रैवल ही करती रहती है, बिकॉज 1-2 घंटे तो मुझे आने जाने में ही लगते हैं, 45 मिनट्स जाना, 45 मिनट्स आना, एंड अप एंड डाउन समथिंग, तो इतना टाइम तो मुझे उसमें लग जाता है. दिस इज़ हेक्टिक समटाइम्स, दिस इज़ हेक्टिक व्हेन आई विल नॉट बी एबल टू मैनेज इट. समटाइम्स इट हैपन कि मेरे से इतना सब मैनेज नहीं हो पाता, बिकॉज कई बार मैं निकलने में इतना लेट हो जाती हूँ लाइब्रेरी के लिए, फिर वहाँ जाके थोड़ा मूड ऐसे रहता है कि लेट आई, फिर जल्दी जाना है या कुछ हो जाता है, पढ़ाई नहीं हो पाती. बट आई ऑलवेज ट्राई टू इम्प्रूव इन दैट थिंग, कि वो बैलेंस बना रहे. When I say about balance, don't take me wrong. Balance का मतलब ये नहीं होता to stick yourself to a disciplined schedule. No. Balance means ticking off, marking off all those targets that you have set for the day at the end of the day. You are yourself satisfied कि आपने जो जो targets बनाए थे, you have completed it and you have managed it. देखो, बैलेंस और टाइम मैनेजमेंट बहुत सिमिलर टाइप्स के होते हैं, बिकॉज टाइम मैनेजमेंट इज समथिंग कि आप अपने पूरा दिन के जितने घंटे होते हैं आप कैसे इफेक्टिवली एलोकेट कर रहे हो. बैलेंस का मतलब है कि आप जितना सारा आपको काम करना है उसमें से हाउ यू आर बैलेंसिंग ऑल द वर्क सो दैट यू कैन गेट द मैक्सिमम आउटपुट. सो टाइम मैनेजमेंट एंड बैलेंसिंग इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट. Okay, and if you find this balance in your life now, your life will become a bit easier. I'm saying bit easier because life actually throws a lot of stones at us, and we have to make sure that every stone that life throws at us now, it makes us better than before. Now coming on to balance बनाना, देखो कहने में कितना आसान है ना, find a balance. It does not happen overnight or in a single day, week, month. It is very subjective from person to person, and depending upon their stuff or
the work they do. For me, it took me around 5.5 years since my mom's incident. It's been 5.5 years, more than that. तो मुझे अब जाके ना थोड़ा वो चीज़ में बैलेंस बनता है कि घर का काम भी हो जाता है, पढ़ाई भी हो जाती है, सम अदर स्टफ ऑल्सो. स्टार्टिंग में व्हाट यूज्ड टू हैपन कि एक टाइम पे तो जैसे बिल्कुल ही पढ़ाई नहीं हो पाती थी, नीदर स्टडीज नॉट द वर्क. सो एवरीवन एवरीथिंग वाज अ ग्रेट क्योर, सब कुछ मेस्ड अप था. बट तब मेरे को ये समझ में आया कि एकदम से सब कुछ मैनेज नहीं हो सकता. वी हैव टू लर्न एवरी डे, वी हैव टू इम्प्रूव. मेरे को अपना पता है कि मैं पहले ना एक बहुत लेज़ी टाइप की लड़की थी, आलसी. मतलब मैं कोई काम नहीं कर सकती थी घर का, लिटरली कोई काम नहीं. अगर आप मेरे को कह दोगे ना कि थोड़ी डस्टिंग कर दो, मुझे उसमें इतना आलस आता था. तो यू कैन इमेजिन मैं कितनी आलसी थी. एंड तब से आई हैव इम्प्रूव्ड माई सेल्फ सो मच कि मैं सारा काम कर सकती हूँ अपने घर का, एंड दैट टू फटाफट. मतलब मेरे को अब आलस नहीं आता, बिकॉज आई नो इट इज़ मी एंड मी हु हैज़ टू डू इट. बिकॉज इफ़ आई डोंट डू इट ना, मेरे को नज़र आएगा मेरा घर साफ़ नहीं है, द रूम इज़ नॉट क्लीन, द किचन इज़ नॉट क्लीन, द अदर एरियाज़ आर नॉट क्लीन. वो चीज़ मेरे को खुद दिखती है ना, तो मुझे खुद से होता है कि नहीं, तनु साफ़ करना है. इट्स योर होम, इट्स योर ड्यूटी, एंड इट्स योर लव टुवर्ड्स योर होम. तो वो खुद से अपने आप ना वो चीज़ आपके अंदर आने लग जाती है. जिस चीज़ को आप रोज़ कंसिस्टेंटली करते हो ना, तो आपका बैलेंस अपने आप बनने लग जाता है. बैलेंस इस तरीके से बनाओ कि शॉर्ट लिस्ट द थिंग्स दैट यू एक्चुअली नीड टू डू इन अ डे, और राइट डाउन सम शॉर्ट टर्म रियलिस्टिक गोल्स कि आपको ये कैसे कैसे अचीव करना है. फॉर एग्जाम्पल, फॉर माई एग्ज़ाम, अभी हमारे शॉर्ट गोल्स क्या हो सकते हैं, दैट वी हैव टू क्लियर द एग्ज़ाम्स. तो इसके लिए आप एक कंसिस्टेंटली एक प्लान बनाओ कि रोज़ मतलब अच्छे से कंसिस्टेंटली 8 घंटे पढ़ाई करनी है. मैक्सिमम चलो, मिनिमम तुम 6 आवर्स लेके चलो, एकदम भी तुम 8 घंटे पे मत जाओ. 6 घंटे पढ़ना है, ये समझ लो. फ़ोन एडिक्शन कम करनी है, मेडिटेशन करना है, योगा करना है, प्राणायाम करना है. ये सब चीज़ें लिखो कि दिन को आपने अपने दिन के जो टाइम को आपने कैसे कैसे डिवाइड करना है. अगर आप रात में सो रहे हो, सुबह उठ रहे हो कि यार कल का प्लान कल ही करेंगे, प्लान योर डे इन एडवांस. और इवन इफ़ यू डोंट वांट टू प्लान इट अ डे बिफोर ना, उठ के उसी दिन सुबह सुबह कर लो. बिकॉज सुबह सुबह व्हेन यू प्लान योर डे, यू हैव दैट पिक्चर इन योर माइंड. अच्छा, ओके, आई हैव टू डू दिस. सो व्हेन यू हैव अ पिक्चर ऑफ व्हाट टू डू इन लाइफ एंड इन डे, अ लॉट ऑफ थिंग्स बिकम क्लियर इन योर हेड. बिकॉज आधी चीज़ें तो हमारे दिमाग में मेस बस इसलिए बना होता है बिकॉज वी डोंट हैव प्रॉपर प्लानिंग. मैं ये नहीं कहती आई हैव अ प्रॉपर बैलेंस इन लाइफ, नो, नॉट एट ऑल. मतलब मैं अगर कहूँ 10% बैलेंस है, आप ये मानो 10% बैलेंस है, बिकॉज नो बडी कैन बी परफेक्ट, बट ऑब्वियसली वी कैन ट्राई टू इम्प्रूव आवर सेल्फ एवरी डे. वी आर आर ओन कम्पेटिटर, एंड हमको खुद को अपने पहले वाले दिन से अच्छा बनाना है, यही होता है. सो आप इतनी मेहनत करो ना, अब आपकी लाइफ में वो बैलेंस, वो मैनेजमेंट अपने आप आ जाए. बिकॉज डिज़र्व बिफोर यू डिज़ायर, मैंने ये शुभम सर की वीडियो में हर बार सुना है. सर बहुत सही कहते हैं, डिज़र्व बिफोर यू डिज़ायर. इसका मतलब है आप कुछ चीज़ जो पाना चाहते हो, थिंक क्या आप उसके लिए डिज़र्विंग भी हो, वो वर्थ इट भी है आपके लिए, लाइक क्या आप उस चीज़ के लिए बने हो. तो यू हैव टू मेक श्योर दैट you have a clear plan of what to do and what not to do. And this video is just recorded to share these feelings of mine with you all, and I hope these points will somewhere help you all. And if you find this video beneficial for you, do let me know in the comment section, and I'll be coming up with more podcasts or some stuff like this. So subscribe to my channel if you haven't subscribed it yet, and I hope you like the video. We'll meet in the next video. Till then, ध्यान रखो. Okay, bye. See ya.